Akash, Gautami, Mitesh, Ninad, Nishigandha, Raju, Shubhangi. Hello, sir. Utkarsha, Vishal. Hello, sir. Hello. आवाज क्लियर है ना मेरा? हेलो? Yes, yes. हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, thank you. So as this is the demo session, the first session of your batch, so let me write today's agenda. So we'll try to find answers of few questions like what is computing? So what is cloud computing? There is an echo from my side. Please mute yourself, everyone. Echo, right? Hello? नहीं, sir. Okay, thank you. So it may happen from my side, some network issue might be there as I'm not in Pune. And Pune में भी बहुत सारी बारिश हुई है शायद. I'm not using Wi-Fi, guys. I'm not at Pune. So it may happen कि network वगैरह बीच में जाए. I'm taking most care because it's a Diwali season. After Diwali, I will be there in Pune, so don't worry. So I have 100 Mbps line at my home, but अभी तो मोबाइल के हॉटस्पॉट से चल रहा है. So इको हो सकता है या नेटवर्क इशू हो सकते हैं. Okay, so if you find some network issue, echo in my voice, so please communicate. Okay, मुझे WhatsApp करो या मुझे WhatsApp नहीं, sorry, chat box में मैसेज लिखो या you may raise your hand या तुम अनम्यूट करके बात कर सकते हो. No issue at all. So ठीक है, चलो. I hope this is clear. Mitesh, fine. Yeah, no issue. So let's talk about what is computing, what is cloud computing, then what is data center. Then we'll talk about what is virtualization. Then we'll talk about why CC. So I'll write short form cloud computing. Then there are few topics that we'll cover tomorrow also because don't know how much time it will take. So we'll talk about. Today we'll talk about syllabus first, then few topics like cloud computing platform. We'll talk about what is AWS, what is Azure, and what is Google Cloud Platform. We'll talk about that. Then tomorrow we'll talk about cloud computing platforms. Then we'll talk about CC means cloud computing deployment. And we'll talk about CC.
that. So this is what the plan for these demo sessions. So let's wait for 1 more minute. It's the first day demo session. And before starting, let me know key why you want to learn AWS. Means whatever in your mind, please share with me. Akash, Diksha, Gautami, Mitesh, Ninath, one by one. Yes, whatever in your mind. Sir, पढ़ना है, ये करना है, मुझे ये, so मैं using language. बोलो, what is your reason? Anything. Raju, Shubhangi, Utkarsha, Vishal. Sir, actually, most of companies using this technology Yes. and its equipment and So I it think, is required. It is the future of. right. So why not We to are all learn? are freshers, so I think bright future in this technology. Yes, that is true. That is 100% true. Good. Any other reason, guys? Using cloud computing, most of Yeah, the data that's it. can be handled easily. Sir. Yes, Gautami. Please repeat. Gautami. Using cloud computing, a huge amount of data easily handled by the platforms. For example, AWS, Azure, and GCP. So it is Oh, a very good platform. we can handle a huge amount. Yes, that will cover what exactly we can do with AWS Azure. So that will cover in the syllabus. Good. No issue. Yes, Akash. What is your reason? तो कौन था आकाश था निनाद था आई शायद निनाद Yes, Ninath. yes निनाद बोलो what is your reason Yes. Because currently many people are working at the BPO like backend or knowledge KPO. So we are trying to convert from backend to frontend like IT into IT. So okay for the commerce background, it's a good option for the future career. So we are yes trying. yes means if we are from non-IT background and if we know less little about the coding then it's good to Right. switch into cloud but yeah no issue yes so, and many candidate from the commerce or any other background they are doing good in cloud services okay Yes. yes good reason enough yes what about others Shumangi Utkarsha Vishal Prajakta Gosalkar okay no issue fine so इसमें से हो सकता है yes sir I'm fresher and it's a new technology and सब लोग पढ़ रहे so I want to learn so job होंगे बहुत openings है so I want to learn so that might be your reason so no issue जॉब तो है जॉब तो कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ो तुम जॉब तो मिलेंगे बट सी द नॉलेज एंड हाउ यू अप्लाई दैट नॉलेज एंड दैट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी आईटी इट मे बी स्मॉल स्केल इट मे बी लार्ज स्केल एमएनसी हो या कोई भी हो ना they want cloud architect they want DevOps engineers which are having the knowledge of networking means cloud and they are migrating their on-premises infrastructure on the cloud means many projects they are migrating on the cloud so that is why there is a huge requirement of candidate who are from this background
And with this cloud now, if you have little knowledge of Python or any of the programming language now, then it's like a Mentos जिंदगी. Okay, so chill करो. But चाहिए guys, means if you think ना कि मुझे कोडिंग नहीं आता तो ठीक है, बट मैं सीखूंगा ही नहीं अगर ये अप्रोच होगा ना, तो फिर तुम नहीं टिक सकते इस इंडस्ट्री में. सो टू डू सम ऑटोमेशन you must require some sort of code, and then if this AWS or these cloud platforms are very what we can say, they can work with various languages, but they are very good with Python. So means what I'm saying कि बाबा Python भी पढ़ लो जल्दी से, क्योंकि then you have very bright future if you learn Python with AWS. ठीक है, means पहले AWS complete करो, then parallelly you may start Python. Then there are few other technologies also that I will tell you कि भाई ये भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ AWS पे मुश्किल है मीन्स एंटर करना. सो दो तीन चीजें भी चाहिए लाइक Ansible, Terraform. सो ये भी मैं तुमको बताऊंगा, डोंट वरी, सो दैट तुमको इस फील्ड में आना ना इजी हो जाएगा. ठीक है गाइस. हेलो सर, AWS के साथ अभी ये जो पाइथन टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इसके रिलेटेड ही जॉब ओपनिंग्स रहती है क्या? जब अभी लिनक्स आउटडेटेड होते जा रहा है क्या? नहीं रे बाबा, नहीं. आई थिंक यू मिस अंडरस्टैंड माय वर्ड्स. मैंने बोला कि क्लाउड पे काम करना है, AWS आना चाहिए. मोस्ट ऑफ द क्लाउड मशीन्स आर ना, ऑलमोस्ट 95% मशीन्स आर वर्किंग ऑन लिनक्स. तो लिनक्स भी आना चाहिए, लिनक्स भी आना चाहिए बाबा, लिनक्स भी आना चाहिए. नहीं आता तो मैं पढ़ूंगा. हाँ, लिनक्स, हाँ आप राइट बता रहे, पर अभी इंटरव्यू देते समय कुछ कंपनियां पूछती है कि आपको पाइथन आता है क्या, मतलब नहीं क्या? यस, मैं बताता हूँ ना, रीजन बताता हूँ कि पाइथन से मैंने बोला ना कि मेंटल जिंदगी हो जाएगी तुम्हारी. रात को 2 बजे तुम 9 से 5 काम किए, सो रहे हो, रात को 2 बजे मैनेजर का कॉल आएगा कि भाई ये जो मशीन है ना, ये मशीन अपना लोडेड है एंड उसको है ना, उसको और एक सप्लीमेंट्री मशीन चाहिए. तो तुमको 2 बजे उठ के ना वो काम करना पड़ेगा. तो ये तो हो गई नॉर्मल जिंदगी. बट अगर तुमने उसी का 2 लाइन का कोड लिखा होगा कि भाई 2 बजे हो रात के, या सुबह के 2 बजे हो, या जो भी कुछ टाइमिंग है, मेरे मशीन पे अगर लोड पड़ता है तो पाइथन का एक 2 लाइन का कोड रन होगा, एंड दैट 2 लाइन कोड विल डू माय जॉब. एंड वो जो मेरी एक मशीन चल रही है उसको ऑटोमेट करके वो ऑटोमेटिकली 2 मशीन बनाएगा, 3 मशीन बनाएगा, 10 मशीन बनाएगा. तो ये काम तुम्हारा पाइथन करेगा. आर यू गेटिंग इट और नॉट? हेलो? यस सर, यस श्योर, यस. तो ये मैंने बोला कि लाइफ नॉर्मल जिंदगी जीने है तो विदाउट पाइथन जियो, मेंटोस जिंदगी चाहिए तो फिर थोड़ा पाइथन पढ़ना पड़ेगा. हेलो? हाँ सर. ओके, यस. So this is what about Python. बाकी लिनक्स तो लिनक्स विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वो उस मशीन का क्या आचार डालते हैं? नहीं, लिनक्स तो चाहिए. किसने बोला लिनक्स आउटडेटेड है? अरे बाबा, लिनक्स पे ही बहुत सारे नेटवर्किंग, बहुत सारे सर्वर्स है ना, लिनक्स है 90-95%, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी एंड बिकॉज ऑफ मेनी अदर्स थिंग. सो लिनक्स तो पढ़ना ही है. तो अपना कोर्स का कंटेंट भी लिनक्स में पढ़ाऊंगा तुमको, बट उस लेवल पे नहीं. लाइक लिनक्स के ना सेपरेट कोर्सेज भी होते, 3 मंथ के, 6 मंथ के, तो उस लेवल पे नहीं जाएंगे. बट फॉर क्लाउड इंजीनियर जितना लिनक्स चाहिए ना, बेसिक लिनक्स, वो मैं पढ़ाऊंगा तुमको, डोंट वरी. ठीक है? हेलो? यस सर, यस, ओके सर. फाइन. सो आई होप सब ज्वाइन हो चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. So let's try to find out. Hello, sir. Yes. Sir, just one question. ये क्लाउड चालू करने के लिए इसका मतलब लिनक्स का बेसिक नॉलेज और क्या-क्या बेसिक ग्राउंड जैसे बैकग्राउंड ये होना चाहिए बेस के लिए?
ये मैं बताऊंगा ना यार, डोंट वरी, पहला Okay. सेशन है, डर जाओगे ना। Okay. Okay. Thank you. Okay, so basically there is no prerequisite as such, बट अगर थोड़ा पर नेटवर्किंग आता है, OSI मॉडल पता है, IP एड्रेस क्या होते हैं पता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होती है, वो कहाँ पे चलती है या दिखती कैसी है, उतना नॉलेज है तो अच्छी बात है। नहीं है तो अपन करेंगे ना, 2 महीने में क्या करना है, 2-2.5 महीने में यही तो सीखना, ठीक है। Okay. Okay. So there is no as such prerequisite कि नहीं नहीं ये तो आना ही चाहिए, बैकग्राउंड इंजीनियरिंग चाहिए, बैकग्राउंड IT चाहिए तभी होगा, तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सर मुझे एक क्वेश्चन था यस, सर कि अपना जो अभी हम तो नॉन IT बैकग्राउंड है राइट, तो अभी अरे आपने जो अरे जैसे बोला एक जस्ट सेकंड, आई थिंक देयर इज इको। नीना, तुम्हारे साथ में कोई बैठा है क्या? और नहीं वहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे आ रहा है बस क्लियर। तुम्हारा आवाज आ रहा है बट बैकग्राउंड में ना कुछ तो कोई तो बात कर रहा है, नहीं 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 मेरा इधर से कोई आवाज नहीं। तो मेरा वॉइस का इको फिर मेरे को आ रहा है तुम्हारे थ्रू। ओके तुम 2 मशीन से ज्वाइन हो गए, ऐसा कुछ नहीं, एक ही मशीन। हाँ एक ही मोबाइल से ज्वाइन। बोलो बोलो बोलो। तो मुझे ऐसा बताना था कि आप जो बेसिक अभी लिनक्स है पाइथन, वो दोनों लैंग्वेज का जो AWS में, क्योंकि हमें तो कोई IT का नॉलेज ही नहीं है, जीरो नॉलेज पे हम अभी देखो देखो, पाइथन इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। मैं बोल रहा हूँ कि ये कोर्स करने के बाद तुमको जॉब भी लगेगा, 1 साल काम भी करोगे तुम, बट 1 साल बाद तुमको पाइथन पढ़ना ही है, बिकॉज तुमको समझ में आएगा कि अरे मेरे से जो साथ में कर रहा है काम वो इतना परेशान नहीं है, मैं क्यों परेशान हूँ, मेरे को कितना 10 घंटे काम करके फिर मेरे को क्यों लोड आ रहा है। तो फिर तुम समझोगे कि वो बंदा है ना कुछ पाइथन में ऐसी चीजें कर रहा है जिससे उसका काम आसान हो रहा है, एंड मैं वही चीज मैन्युअली कर रहा हूँ, तो मेरे को उतना टाइम जा रहा है। सो मैं ये बोल रहा हूँ कि विथ दिस टेक्नोलॉजी, इफ यू लर्न पाइथन ना आफ्टर 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर बाद में, तो तुमको बेनिफिट है, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हेलो, ओके यस, तो इट डजंट मीन कि आज ही पाइथन आना चाहिए। यस यस सर। तो इस क्लास में अगर हम दोनों भी करना चाहते हैं एट ए टाइम तो होता है क्या? ये अपने इधर होता है क्या? क्या करना है दोनों भी? पाइथन नहीं AWS के साथ ही पाइथन ऐसा? AWS के साथ में पाइथन ऐसा तो आपको कुछ कॉम्बो नहीं है, बट ओके ओके पाइथन के बैचेस अपने मॉर्निंग में चलते हैं, मॉर्निंग 8 o'clock से। सो ऐसा कर सकते हो तुम, मॉर्निंग में पाइथन के बैच ज्वाइन करो एंड इवनिंग में AWS पढ़ो, सो दैट। ओके बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू कि कैसे कोप अप करोगे, क्योंकि वो भी 2 घंटे चलेंगे, ये 2 घंटे, एंड देन दोनों का भी असाइनमेंट, टास्क एंड एवरीथिंग, सो अगेन, ठीक है। तो अभी तुम क्या क्या है कर कि हम सकते अभी करंटली मैं वर्किंग हूँ। हो? ओके ओके, तो फिर ये मैनेज करना ना थोड़ा ना डिफिकल्ट जाएगा। सो व्हाट यू कैन डू, क्लाउड पढ़ लो, 2 महीने का कोर्स है, 1.5 महीने, 2.25 महीने हो गए ना, तो फिर बाद में तुम पाइथन 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का कोर्स लगा सकते हो, सो दैट। तो बीच में आपका आवाज जा रहा है। यस, यस हाँ अभी क्लियर है। बीच में आपका, हाँ, बीच में बोलो साउंड जा रहा था। क्या हो रहा है? साउंड कट हो रहा है। मेरा साउंड कट हो रहा है? हाँ, अभी कुछ देर पहले साउंड कट हुआ था इसलिए। ओके, अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। या इज नॉट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो, सो आकाश, और कुछ? नो सर। नहीं निनाद बात। निनाद था, निनाद, यस निनाद, अभी क्लियर है निनाद? हाँ तो कुछ मुझे ये जानना था और कि ये जो है अभी ऑफलाइन बैचेस है या ऑनलाइन? किसके, क्या चीज के, पाइथन के या AWS नहीं AWS नहीं के? AWS। AWS दिस 8 o'clock को ऑफलाइन किधर आओगे रे तुम, ऑफिस में 8 o'clock की नहीं बैच अपनी ऑनलाइन ही है। ओके ओके आफ्टरनून में 2 o'clock की अपनी ऑफलाइन होती है, बट वो भी अभी स्टार्ट होके 15-20 दिन हो गए, तो वो आगे चल पड़ी अभी, तो फिर तुमको फिर वेट करना पड़ेगा फॉर अ मंथ और 1.5 मंथ, सो दैट तुम फिर वो ऑफलाइन वाली भी बैच कर सकते
आई थिंक वो मेरा टास्क नहीं रहा, आई एम ट्रेनर ओवर हियर, सो ओके whoever is the counselor प्राजक्ता मैम होगी या ऋतुजा मैम, सो शी कैन गाइड बेटरली। ओके, मैं उसमें मुझे इतना नहीं पता होता। ओके चलो, और कुछ स्टार्ट करें फिर? यस यस, ऑल ऑफ यू गाइस से यस इन चैट बॉक्स। स्टार्ट करना है तो उत्कर्षा, विशाल, राजू, शिवांगी, प्लीज से यस इन चैट बॉक्स। तो अपन स्टार्ट करेंगे। चलो, बढ़िया बढ़िया, यस फाइन। क्योंकि क्या हो सकता है ना, तुम लोग है ना फिर कहाँ पे तो होगे, वर्क पे या घर पे, तो म्यूट अनम्यूट नहीं कर सकते, सो चैट बॉक्स अपने लिए ओपन होता, सो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी एंड मुझे वो दिखता है सडनली, और यू मे रेज योर हैंड, वो भी मुझे दिखता है, सो आप ऐसे कर सकते। चलो बढ़िया गाइस, ओके, गुड गुड क्वेश्चन सर, आई लाइक योर अप्रोच। नहीं तो क्या होता है ना, फर्स्ट डे सर मुझे पूछना था, लेकिन मैं डर गया, मुझे लगा क्या है, तो ये होता है जनरली, बट चलो बढ़िया। Let's try to find out the answer of this question. What is computing? देखो, तुम बोलोगे सर ये क्या क्वेश्चन है, मेरे को आता, मैंने ग्रेजुएशन में ही पढ़ा था। तो गाइस, तुमको आता है ना, तो पहले ना एक 8 डेज के लिए ना, पहले 8 नहीं 2-3 डेज के लिए फिर प्लीज यार बेयर करो, क्योंकि सभी को नहीं आ सकता ना ये क्वेश्चन का आंसर। सो फिर तुम जस्ट मजे करो, एंजॉय करो, देखो क्या क्या आंसर्स आ रहे, अगर आता है तो, नहीं आता तो फिर तुम एक ही कश्ती में हो। तो लेट्स ट्राई टू find the answer and so what do you think, what is the dictionary meaning? English word है ना ये, computing, compute करना। so what do you think, क्या लगता है तुमको कि ये computing means क्या word है? anyone? कुछ चीजें कुछ पुट ऑन करना, ऐसे मेरे हिसाब से कुछ चीजें पुट ऑन करना, टुगेदर करना, और उससे कुछ यूज करने के लिए कंप्यूटिंग। okay, कुछ चीजें put on करना, together करना, okay fine. anything else? hello, any other answer? anyone? तो क्या, एवरी टाइम प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि सर मेरा नाम लेंगे तभी मैं अनम्यूट करूंगा। ओके, हेलो, इन शॉर्ट प्रोग्रामिंग, मितेश बोल रहा है, प्रोग्रामिंग करना, कंप्यूटिंग करना मीन्स प्रोग्रामिंग करना नहीं, ऑलवेज कंप्यूटिंग मीन्स प्रोग्रामिंग नहीं होता। देखो मैं एक सिंपल शॉर्ट में बता, कंप्यूटिंग करना मीन्स क्या करते, कंप्यूटिंग करना मीन्स हम दो वे से कंप्यूटिंग कर सकते हैं। लाइक अपना ब्रेन जो होता है ना, ह्यूमन ब्रेन, so that brain is also always doing some computations, दिमाग में चल रहा है कि ये करना है, वो करना है, any, yes दीक्षा बोल रही है, any operations with the help of PC, laptop, mobile, calculation, yes yes guys, yes आ रहे, अभी आंसर आ रहे, बढ़िया बढ़िया। शुभांगी का भी आंसर आया, दीक्षा का भी आया, मितेश का सबसे पहले आया, बढ़िया, गुड। सो चैट बॉक्स में मुझे रिस्पॉन्ड मिल रहा है। सो चलो, मितेश ने जो आंसर किया, आई विल जस्ट कॉपी दिस सो दैट अदर्स माइट अंडरस्टैंड कि क्या करना पड़ता है चैट बॉक्स में। देखो मितेश बोल रहा है, इन शॉर्ट इट इज अ प्रोग्रामिंग, ठीक है, दिस इज आज पर मितेश व्यू, ब्लैक इंक में लिख रहा हूँ ये सारा। Then Diksha is saying, this is what the compute. Any operation, I think Diksha ये Google क्या कहता है? Google को पूछ। थोड़ा डेफिनेशन है ना,
देखा देखा लग रहा है, सुना सुना। एनी ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ पीसी, लैपटॉप, मोबाइल। शुभांगी ने कैसे लिखा है? शुभांगी ने कैसे मन से लिखा? सर कंप्यूटिंग में कैलकुलेशन, ये कैसे लगता है? और ठीक है, नो इश्यू। दीक्षा, प्राजक्ता, प्राजक्ता नहीं, क्या है नाम आपका? हेलो, प्राजक्ता है क्या? प्राजक्ता ही है। प्राजक्ता ही है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। सो प्राजक्ता, प्राजक्ता व्यू एनी एक्टिविटी टू मैनेज, प्रोसेस, कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। बड़े, so lot of technical definitions are in my way, बढ़िया, नो इश्यू। देखो, मुझे क्या लगता है, मैं तुमको बताऊं, दिस एवरीथिंग इज करेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी कंपटीशन हो सकता है, ये भी। So Diksha is saying any operation with the help of PC, laptop, mobile. So yes, जो मैंने बोला कि 2 वेज होता है कंप्यूटिंग। तुम एक तो दिमाग से कर सकते हो, दिमाग में तुम्हारे चलता रहता है कंप्यूटेशंस, क्या रही है, क्या वो, क्या पाइथन नहीं आता, लिनक्स क्या है, AWS, अजूर, कितने मंथ का कोर्स है, ट्रेनर कौन है, एंड सो ऑन, करना है नहीं करना है, जॉब चल रहा है, स्विच करना है, मैनी प्रोसेसेस। किसने ये बोला था? प्रोजेक्ट। So any activity to manage, process, communicate information, तो मैनेज ही कर रहे हैं अपन, दिमाग में कुछ प्रोसेस ही कर, कोर्स करना है नहीं करना है, सो ऑन। तो ये सारे कंप्यूटेशन अपने दिमाग में चलते रहते हैं ना, उसके हम कुछ तो फ्रूटफुल रिजल्ट निकलते हैं कि यस या नो, करना है नहीं करना है, लॉजिकल थिंकिंग। दैट इज वन वे। सेकेंड वे इज मोर क्लोजर टू मी, दिस Diksha's answer कि सर the computing is nothing but the operation with the help of PC, laptop, mobile. But thing is that what kind of operations? So my simple or calculation, yeah, the word calculation, that is also fine. Calculation done with the help of some tool, जो कि शुभांगी ने बोला, that is also done. But what kind of calculations? So let's talk about the example of mobile. So mobile में हम क्या करते हैं? देखो, मोबाइल में अपने पास है ना, मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, एंड दैट एप्लीकेशंस कहाँ पे तो होते हैं, कहाँ पे होते हैं? मोबाइल में, एंड्रॉइड में होते हैं, प्ले स्टोर में। ये सुनो, हेलो, होते नहीं होते? हाँ सर। हाँ, सो प्ले स्टोर में होते हैं, एंड देन हम क्या करते हैं, प्ले स्टोर में जाते हैं, हमें ना व्हाट्सएप चाहिए, सो विल सर्च फॉर व्हाट्सएप, एंड देन वो व्हाट्सएप देखा था कि ये व्हाट्सएप है, देन तुम उसके ऊपर क्लिक करते हो, वो व्हाट्सएप क्या होता है, तुम्हारे मोबाइल में इंस्टॉल होना या डाउनलोड होना स्टार्ट होता है। सो व्हेन यू डू दैट थिंग ना, कि एप्लीकेशंस है, प्ले स्टोर में जाना है, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, ये सारी चीजें जो होती है ना गाइस, दैट इज नथिंग बट कंप्यूटिंग। तुम्हारा जो मोबाइल ना, मोबाइल के अंदर का जो प्रोसेसर है ना, ये प्रोसेसर ये कंप्यूटेशंस कर रहा है, जिससे हमें वो इंस्टॉलेशन चीजें आ रही है मोबाइल में तुम्हारे, वो कहाँ पे, तो क्लाउड पे होगा, कहाँ पे तो सेव किया होगा ना उस एप्लीकेशन मोबाइल का, तो वहां से तुम्हारे मोबाइल में आ रहा है, फिर वो इंस्टॉल हो रहा है। तो सेम थिंग इज एप्लीकेबल विथ लैपटॉप एंड पीसी ऑल्सो। सपोज लैपटॉप पे, पीसी पे मुझे इंस्टॉल करना है कुछ VLC प्लेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर ऑफ योर चॉइस, सो तुम गूगल करते हो कि हाँ डैश 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 डाउनलोड XYZ सॉफ्टवेयर मुझे डाउनलोड करना है, सो गूगल बोलता है फॉलोइंग आर द लिंक्स, सो यू क्लिक ऑन सर्टेन लिंक्स, तो वहां से फिर वो बोलता है यहाँ पे तुम आओ, यहाँ पे क्लिक करो, एंड अगेन यू डू द सेम थिंग, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, सॉफ्टवेयर नथिंग बट बाइनरीज होती है, उसकी बाइनरी फाइल होती है 0 1, तो बाइनरी फाइल्स हम लेके आते हैं अपने मशीन के ऊपर, एंड उस बाइनरी को एक्सट्रैक्ट करते, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता, तो वो बाइनरी 1 GB का 2 GB का सॉफ्टवेयर पे 3-4 GB का बन जाता। सो बाइनरीज क्या होते हैं, एक्सट्रैक्ट होती है। सो दैट ऑपरेशन, दैट काइंड ऑफ कैलकुलेशन, ये जो तुमने बराबर लिखा है सबने, देन बाय प्रोग्रामिंग आल्सो वी कैन डू दैट।
So everyone is correct. Any activities, this kind of activity. ये जो हम कर रहे हैं ना guys, that is nothing but computing. Okay, clear है? Computing word का मतलब clear है क्या? Hello? Yes sir. Yes. तो मैंने सर ये तो बढ़िया है, हम दिन में 10 बार करते हैं लैपटॉप में या मोबाइल के ऊपर ये ऐप ये ओपन करना, में ओपन करते लॉग इन करते लॉग आउट करते व्हाटएवर, ये तो बहुत बार करते सर। हम बन गए क्या क्लाउड आर्किटेक्ट क्लाउड इंजीनियर? तो नहीं गए, इतने से नहीं बनोगे तो, ठीक है, कुछ और भी चीजें करनी पड़ेंगी। So that second cheese is nothing but, if this is the computing, then what is cloud computing? Computing तो ठीक है, ऑपरेशन हो गया। Now let's try to find out the answer of this question. What is cloud computing or CC? शॉर्ट फॉर्म में इसको अपने throughout this session मैं CC pronounce करूँ, so don't get confused with CC stands for cloud computing. तो समझो, समझने की कोशिश करो। Before going to the cloud computing now, let's try to find out one more thing. देखो मुझे ना ऑपरेशंस करने का, मेरे को ऑपरेशन करने, मेरे को ना मेरे लैपटॉप में ना कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने, तो मैं गूगल करूंगा एंड डायरेक्टली मैं इंस्टॉलेशन स्टार्ट करूंगा। बट आई वांट टू इंस्टॉल वन सॉफ्टवेयर इन शुभांगीज लैपटॉप और प्राजक्ता लैपटॉप, शुभांगी लैपटॉप, दीक्षा लैपटॉप और मितेश के लैपटॉप में या विशाल के या राजू के। सो टेल मी, is it possible from my place, I am sitting somewhere in Pune and suppose you are in Nagpur, Nashik or any other place, and मुझे ना तुम्हारे लैपटॉप के ऊपर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। Do you understand my question? Hello? Yes, yes. कर सकते क्या? नहीं शुभांगी बोल रही नहीं कर सकते। आकाश, गौतमी, निनाद, हेलो, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। सर कितने लोग रेगुलरली लैपटॉप से, हाँ क्या रेगुलरली कर रहे तो नहीं कर सकते। not without internet and other application, not without internet, what did it mean? Not So without you need to have network connectivity. You can take the access of the laptop and you can yes, do it. so if there is a network connectivity between your laptop and my laptop, suppose Yes, you are yes. connected with the internet and my laptop is also connected with the internet, so it is Yes. possible. Yes, yes, it's possible. It's possible, yes, correct. So through the internet it is possible. So I'm sitting on my laptop and I'm opening some browser and I'm saying that okay, download some VLC player or another application. So in my laptop I'm opening browser and I'm downloading VLC player, but through this internet connectivity or through this kind of stuff, actually this is A laptop and this is B laptop. So actually I'm doing that kind of thing virtually on this laptop. So actually I'm downloading VLC player in the B's laptop, which is might be in Nagpur or Delhi or out of India, somewhere else in another country. So it may happen that this laptop, B laptop, is in another country, and what I can do, I can install some software in this laptop and I can watch movie. I want to watch one movie. So though I am using my laptop, but virtually I'm connected with the B laptop and I'm playing the movie on B laptop. That is one case. So Project X saying this is possible through internet. It is possible. What about others? Akash, Diksha, Gautami, Mitesh, Ninad.
निशिगंधा, राजू, शुभांगी, उत्कर्षा, व्हाट डू यू थिंक? पॉसिबल है ऐसा करना? हेलो, यस, आकाश बोल रहा है यस यस, मितेश बोल रहा है यस सर बाय स्क्रीन Possible. शेयर. सॉरी, वाज दैट दीक्षा? कौन थी? गौतमी? पता नहीं. Gautam, yes, it's possible through using IP address and some other platform. Yes, there are plenty of software available in the market like AnyDesk or in the Zoom. Using Zoom also, I can do that. Means if you have joined by using laptop now, Utkarsha or any other, so I can have the access of your laptop directly. Means I will ask you to share your screen, and then there is one option in Zoom so that I can control your desktop. I can open any tab, I can open browser, I can download anything in your machine. So it is possible, guys. But the question is, why I want to do this? So there are certain answers, many answers for this. क्यों करना है मुझे क्यों बीके लैपटॉप में कुछ डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है? See my reason. Suppose my laptop is having 2 GB of RAM. I think RAM, ROM, processor, ये वर्ड्स सबको पता है. हेलो गाइस, हेलो, बिकॉज ये कैसे अभी डे टू डे के वर्ड्स हो गए ना, मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन हो, लैपटॉप को. So 2 GB of RAM, 8 GB, 2 GB तो तुम बोलोगे सर क्या आउटडेटेड बात कर रहे हो? I have 16 GB of RAM in my laptop and so, और मोबाइल को भी अभी 12 GB की RAM मिलने स्टार्ट हो गई. But yeah, my laptop is older version. I have 2 GB of RAM and I have dual core kind of, or i3 first generation, suppose i3 first generation processor, and I have 256, let's say 80 GB of hard disk, that is my ROM. So if this is configuration of my laptop, a laptop, okay? So as per the today's era, means जो भी कुछ heavy software अभी चलते अपने, so for them this 2 GB of RAM is not sufficient. And suppose I'm engineering student or any other background student, and I am doing my project, last year project, final year project, and for final year project, I have to install one software, and that software is of around 20 GB. Okay, 20 GB of software. एक software है जिसका मेरा project चल रहा है, free software है, but the size of that software is around 20 GB. अब मेरा लैपटॉप तो पागल हो जाएगा, वो बोलेगा पहले से 80 GB का हार्ड डिस्क है, उसमें से भी तूने 40-50 GB खाली है, और अब now you want to install the 20 GB software, तो मैं तो हार्ड डिस्क भी फुल हो जाएगा मेरा, and I have only 2 GB of RAM. So this 20 GB software and animation and all those मेरे से नहीं होगा भाई. मैं लैपटॉप मेरा मुझे बता रहा है कि भाई देखो इंस्टॉल कर लेगा तू, बट वो सॉफ्टवेयर तुमको ओपन करना है ना, उसके लिए ना मैं कम से कम 10 मिनट लूंगा. ठीक है, कर तो दूंगा इंस्टॉल में, बट इफ यू डबल क्लिक ऑन दैट आइकन ना, तो मैं तो 10 मिनट लूंगा प्रोसेस करने में. देन इफ यू रन सम कोड इन दैट सॉफ्टवेयर और कुछ प्रोसेस कर रहे हो ना, तो उसके लिए कम से कम मैं 30 मिनट लूंगा. देन कुछ बड़ी चीज कर रहे हो ना तुम, उसके लिए इट में अपन में 1 आवर ले सकता हूँ. सो ये कौन बोल रहा है? लैपटॉप बोल रहा है, मेरा लैपटॉप ए बोल रहा है. तो मैं परेशान, कौन इतना वेट करेगा ना? if I want to run some 10-20 line of code on that software, but due to this kind of heavy weightage or this large size of software ना, मेरा लैपटॉप है ना नहीं जम रहा, उसको बोला नहीं यार मेरे से नहीं होगा. सो फिर क्या सोल्यूशन है मेरे पास? बताओ यार, तुम ही बताओ. हेलो, व्हाट इज द सोल्यूशन? मेरे को तो प्रोजेक्ट सबमिट करना है, सिमुलेशन गाइड सर पे बैठा है, देख मेरे को पता नहीं सिमुलेशन के रिजल्ट चाहिए. व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर मी? आकाश, दीक्षा, गौतमी, नितेश, निनाद, प्राजक्ता,
प्रणाली, राजू, तो शुभांगी, क्या क्या करें? यस, बोलो। Any solution for this situation? Install on another laptop and just use that memory or to do the work temporarily. Okay, so I need another laptop. So कौन देगा मुझे? यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं कि उतना जीबी का Amazon वेब स्टोरेज रेंटल या परचेस कर सकते हैं। अरे अभी तक तो AWS पढ़ा ही नहीं ना हमने। AWS पढ़ना है ना बाबा। AWS पढ़ेंगे तब वो करेंगे ना, नहीं ना? हेलो हेलो, लेके क्या हुआ आकाश? यस आकाश, हेलो। Akash, your voice was breaking. Akash, can you please come again? Cloud store. Okay, Akash बोलो cloud. गौतमी बोल रही है use another virtual machine. Cloud. Okay. So increase RAM. Okay, मितेश का सजेशन बढ़िया यार। तो 2 GB क्या कर रहे हो RAM? बढ़ाओ ना RAM। तो ठीक है, इंक्रीज रैम करूंगा 2 GB का। कितना करें? यूज अनदर डिवाइस। निशिगंधा बोल रही है अनदर डिवाइस। अभी रैम इंक्रीज करना, देखो 2 GB का 12 GB कर सकता हूँ मैं। ओके, बट वो 12 GB का रैम सपोर्ट तो करना चाहिए ना, ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ i3 प्रोसेसर, ये 8 GB रोम। इसका भी कुछ तो लिमिट होगा ना लैपटॉप का भी। देख 2 GB का रैम है ना, मैक्सिमम 4 GB कर सकते। दैट माइट बी वन कंस्ट्रेंट फॉर मी। निशिगंधा बोले सर एक अनदर डिवाइस ले लो। अब देखो रात के 9 बजे मेरे को कौन देगा, मेरे को कौन एक मशीन देगा, एक लैपटॉप देगा जिसमें 16 GB का रैम होगा, i7 प्रोसेसर होगा, i7 काइंड ऑफ प्रोसेसर 4th जनरेशन या समथिंग लाइक दैट। एंड कौन मेरे को 500 GB का सपोर्ट हार्ड डिस्क। रात को 9 बजे कौन सा फ्रेंड नियर बाय मेरा, अभी इतनी बारिश हो रही है, उसको भी पॉसिबल नहीं ना, दोस्त के पास एक दोस्त नियर बाय चाहिए। वो रहेगा दिल्ली में, वो रहेगा नासिक में, रहेगा नगर में, सातारा में, रहेगा अकोला में, जालना में। अब वो किधर से देगा ना रात को 9 बजे लाके। और तुम बोलोगे सर कल लेना, फिर कल लेना तो कल मेरे को नहीं तो उसको आना तो पड़ेगा ना पुणे। आर यू गेटिंग इट और नॉट? मेरी समस्या समझी क्या तुम? हेलो गाइस, हेलो। यस सर। यस, तो ये मेरी समस्या है और इस समस्या का सोल्यूशन हमें निकालना है। तो तुम बोलेंगे सर फिर क्या करने का ना, ऐसे ना एनी डेस्क या कुछ तो सॉफ्टवेयर यूज करने का, उसको बोलने का देख तू लैपटॉप तेरा चालू कर, फोन करने का, उसको कॉल लगाने का या व्हाट्सएप करने का, लैपटॉप उसको बोलने का ऑन कर एंड उसको इंटरनेट कनेक्ट कर बोलने का। तो उसको एक्टिव इंटरनेट चाहिए, एज पर प्राजक्ता व्यू इंटरनेट चाहिए। एंड देन यूजिंग एनी वन ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइक एनी डेस्क या बहुत सारे होते हैं, जूम पे भी वो हो सकता है। तो सर उसका मशीन का एक्सेस लो, सो दैट आई हैव द फील कि मैं एक 16 GB i7 प्रोसेसर 50 GB ऑफ हार्ड डिस्क वाले मशीन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। बट ये मुझे सिर्फ फील आ रहा है। एक्चुअल में किस मशीन पे काम कर रहा हूँ? मैं तो पुणे में हूँ, मैं तो मेरे मशीन पे काम कर रहा हूँ। यस और नो? फिजिकली मैं किसका लैपटॉप टच कर रहा हूँ या कीबोर्ड जो है मैं जो मेरा मशीन है उसके कीज प्रेस कर रहा हूँ। बट लॉजिकली मैं किस मशीन के साथ कनेक्टेड हूँ? बी मशीन के साथ कनेक्टेड हूँ। दैट मशीन माइट बी इन नागपुर और एनी अदर प्लेस एंड आई एम इन पुणे। तो पुणे में मैं जहां पे हूँ मेरी मशीन मेरे सामने, but with the help of such a software like AnyDesk, Zoom, I'm controlling my friend's machine and I'm having the access of that machine. इस चीज को है ना बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअली मैं
बी मशीन के साथ कनेक्टेड हूँ, बट फिजिकली मैं तो ए मशीन के ऊपर ही काम कर रहा हूँ, उसके ऊपर इंटरनेट कनेक्शन है, बट काम जो भी कुछ हो रहा है ना, हो रहा है बी मशीन के ऊपर। समझ में आया कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है गाइस? हेलो? Yes, sir. यस, Yes, sir. दिस इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन। ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बट क्या हुआ ना, उस दिन ना इंस्टॉलेशन वगैरह हो गया, बट मेरे इधर का नेटवर्क इशू हो गया, बारिश थी, मेरे इधर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि भाई, मैंने उसको कॉल किया एंड बोला कि अब कल कर, जितना हो गया उतना हो गया। बोलेगा ठीक है। सो अगेन हमने प्लान किया कि कल, बट कितने बजे? तो मेरा भी कॉलेज था, उसका भी कॉलेज है, या वो जॉब कर रहे हैं, वो बोला 9 बजे। ठीक है, तो मेरा तो प्रोजेक्ट करना था मुझे, आज 10 बजे मेरा काम हो गया, बट अभी मुझे वेट करना है कल 9 बजे तक, 9 PM तक, क्योंकि उसने मुझे टाइम दिया है कि देख 9 PM को मैं फ्री हूँगा, एंड देन आई विल टर्न ऑन माई लैपटॉप, एंड देन आई विल गिव यू द एक्सेस ऑफ माई लैपटॉप, एंड देन यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट। तो मेरे तो टाइम गया ना, आज रात के 10 बजे से लेके कल के 9 बजे तक मैं क्या करूँ? अभी मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है ना, मेरे पास रिजल्ट नहीं है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर मैंने इसके मशीन पे इंस्टॉल किया है, एंड मैं आज जो कोड करूंगा इसके मशीन पे करूंगा, एंड वो मशीन रन होके मेरे को रिजल्ट देगी। तो मेरा तो गए ना 10 घंटे। कितने घंटे गए मेरे? 10 9 नहीं, ऑलमोस्ट पूरा 22 आवर्स मेरे को गए। ये इशू है। एंड कल सपोज वो चालू करना था 9 PM पे, बट उसके इधर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उसके इधर इंटरनेट का इशू है, तो फिर और डिफिकल्टी मेरा तो गाइड जाने लगेगा मेरा कि भाई तेरे को 2-3 दिन दे, क्या कर रहे हैं? तो फिर और गड़बड़ हो गई यार। जिसके भरोसे अपन बैठे हैं उसका ही नेट डाउन है आज। हो सकता है बहुत रेन हुआ कि पूरे उनके एरिया का ही नेटवर्क गया, तो फिर कैसे कनेक्ट करें? तो भी इशू है। या दिया भी उसने कुछ करके 2 दिन देगा, 3 दिन देगा, तुम्हारा प्रोजेक्ट रन ही नहीं हो रहा, तुम्हारा चल रहा है 8 दिन से, तो फिर वो 8 दिन बाद बोलेगा देख मेरे से नहीं होगा, तू अपना अपना जुगाड़ कर ले। अब मैं इशू, मेरा फिर से इशू, फिर कि अभी इसका तो इसके लैपटॉप में मैंने प्रोजेक्ट किया था, 50% हो गया था, और अब 50% मैंने कहाँ पे करूँ? तो मेरे पास फिर से ये चीज करनी पड़ेगी। यस और नो? हेलो गाइस? हेलो? Yes, sir. यस। Yes, sir. तो ये चीजें जो होती है ना गाइस, ये चीजें मिनिमाइज करने के लिए ना बहुत सारे कंपनी है ना, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ना खुद के ना कुछ रूम्स बनाए। ओके, इसको मैं बोलता हूँ रूम। अपने जो रूम होते हैं ना, रूम फ्लैट है सपोज, या रूम रेंट पे अपन देते हैं, ऐसे रूम होते बड़े बड़े रूम्स, एंड वो रूम है ना कुछ लोकेशन पे, तो रिमोट लोकेशन पे, सपोज लाइक पुणे में भी सपोज हिंजवड़ी, या और किधर तो दूर दूर है, ऐसे रिमोट लोकेशन पे रूम से। एंड उस रूम के अंदर क्या है ना, उस रूम के अंदर है ना अराउंड 2000 प्लस लैपटॉप, एंड हर एक लैपटॉप है ना अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन का है एज पर द नीड। लाइक कोई लैपटॉप के अंदर GB का रैम होगा, किसके अंदर 10 GB का रैम होगा, किसके अंदर 100 GB का रैम होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट रैम। देन किसके अंदर i3 प्रोसेसर होगा, किसके अंदर i7 होगा, किसके अंदर एक कोर होगी, कोर होते हैं ना, वन सिंगल कोर, ड्यूअल कोर, मल्टीपल कोर, तो किसके अंदर 10 कोर भी हो सकती है, किसके अंदर 100 कोर्स भी हो सकते हैं, जिससे प्रोसेसिंग स्पीड है ना बहुत फास्ट हो जाएगा। इट्स लाइक अ सुपर कंप्यूटर 100 कोर वाला। तो ऐसे लैपटॉप पड़े हुए उस रूम के अंदर, एंड वो लैपटॉप क्या करता है बंदा या वो कंपनी हमें ना रेंट पे देते हैं, वो भी पर आवर के हिसाब से, कि चलो तुमको कौन सा लैपटॉप चाहिए, तो तुम्हें अगर 10 GB रैम वाला लैपटॉप चाहिए
तो मुझे आर्ली 100 रुपीज देने का। 1 GB वाला लैपटॉप चाहिए तो मुझे आर्ली ना 10 रुपये देने का। 100 GB रैम वाला लैपटॉप चाहिए तो मुझे 1 आवर के हिसाब से ना उस लैपटॉप के 1000 रुपीज देने के। तो ऐसे उन्होंने रेट फिक्स किए हुए। तो एज पर योर नीड तुम्हें क्या करना है, 10 GB रैम वाला चाहिए, 100 GB रैम वाला चाहिए, फास्ट प्रोसेस करना है, अकॉर्डिंगली यू विल चूज योर मशीन। एंड वो मशीन है ना रेंट पे लोगे, कॉन्फ़िगर करोगे, ये मशीन कॉन्फ़िगर होगी सपोज it is configured with as per your specification, like 16 GB का रैम हो गया, i7 हो गया एंड सो ऑन। एंड कुछ रोम तुमको जितनी चाहिए उतनी तुमने हार्ड डिस्क ले ली, बन गया कॉन्फ़िगर। तो ये रेंट पे मिलेगा, बट कैसे मिलेगा रेंट पे? तो ये तो रिमोट लोकेशन पे है। रिमोट लोकेशन पे तुम नहीं जा सकते। रिमोट लोकेशन पुणे में भी रिमोट हो तो नहीं जा सकते। पुणे में नहीं है ये, दिल्ली में, तो दिल्ली पे नहीं जा सकते। पेरिस में है, लंदन में है, नहीं जा सकते। टोक्यो में नहीं जा सकते। तो फिर क्या फायदा है? इतने लैपटॉप से रिमोट लोकेशन पे है, कौन जाएगा ना? तुमको देगा वो 100 रुपए के हिसाब से घंटे का 100 रुपीज। अब पेरिस कौन जाएगा ना इम्प्लीमेंट करने को वो चीजें? तो उन्होंने क्या किया, एक सॉल्यूशन दिया कि चलो तुम बताओ पेरिस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिमोट लोकेशन में पेरिस लिखता हूँ। पेरिस, पेरिस में है। अब पेरिस कौन जाएगा बाबा इतने कॉन्फ़िगरेशन के लिए? घूमने को जा सकते, बट ये प्रोजेक्ट के लिए कौन जाएगा पेरिस? घर वाले को बोलेगा तुम सर कि मेरे को ना प्रोजेक्ट करना है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन पेरिस जाना है मेरे को 8 दिन के लिए, जाके आता प्रोजेक्ट। घर वाले बोलेंगे मत कर डिग्री, पेरिस बाद में करेंगे अपन प्रोजेक्ट। तो ऐसे बोल सकते घर वाले। तो तुम क्या कर सकते हो, देखो तुम्हारे घर में बैठ के यू आर आई मीन पुणे, तो पुणे में बैठ के ना थ्रू इंटरनेट with the help of virtualization I can have the access of this machine, and virtually I'm connected with that machine and I have that feel कि yes I'm working on that machine। यहाँ पे बैठ के मैं ना VLC प्लेयर डालूंगा, डाउनलोड करूंगा, इस मशीन के ऊपर डाउनलोड होगा। यहाँ पे बैठ के मैं एक मूवी चलाऊंगा फुल HD वाली, इस मशीन के ऊपर चलेगी वो, एंड मुझे फील होगा कि यस मैं देख रहा हूँ, वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ और मुझे उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो ये चीज अपन कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट, वर्चुअलाइजेशन, एंड उसको पेमेंट करेंगे कि भाई चलो फॉर 1 आवर 100 रुपीज ले ले। तो ये कौन है, कौन ये 2000 लैपटॉप लेके बैठा है इस मशीन, 2000 प्लस, मैंने बोला ज्यादा भी हो सकते 2000 प्लस लैपटॉप्स। कौन पागल है भाई इतने लैपटॉप लेके खरीद के बैठा हुआ है? क्योंकि लैपटॉप है इसलिए रेंट आउट कर रहे हैं। लैपटॉप ही नहीं होंगे या पीसी नहीं होंगे तो कहाँ से रेंट आउट करेगा और क्या रेंट आउट करेगा? एंड ओनली लैपटॉप्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अगर वो रेंट आउट कर रहे हैं तो 24/7 रेंट आउट कर रहे हैं। दिन हो रात हो, तुम्हारे इधर बारिश हो कुछ हो, 24/7 तुमको ये लैपटॉप, तुम रात को 12 बजे लगा सकते हो कि चलो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करता हूँ, तो रात को 12 बजे तुम लैपटॉप वो इश्यू कर सकते हो थ्रू द इंटरनेट वर्चुअली, and you can run your software in that laptop and you can have your result 24/7 like electricity। नहीं होती अपने इधर भी, बट बोलते हैं। तो कितनी बढ़िया चीज है ना ये। हेलो गाइस, हेलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, you are audible. यस बढ़िया। तो कितनी बढ़िया चीज होगी यार ये। ऐसा दोस्त है जो कि रेंट आउट भी कर रहा है रात में, दिन में, कभी मेरे को चाहिए मेरे हिसाब से लैपटॉप वो चालू करके दे रहे हैं, ले ले थ्रू इंटरनेट। तो गाइस ऐसे जो रूम्स होते हैं ना, उसको रूम नहीं बोलते गाइस, उसको बोलते हैं, तो उसको स्पेसिफिक वर्ड है, रिमोट रूम है ना, रिमोट लोकेशन वगैरह, दैट इज नॉट प्रॉपर वर्ड। इसको बोलते हैं डेटा सेंटर। एंड इन द डेटा सेंटर देयर आर प्लेंटी ऑफ मशीन्स, 2000 हो या
10,000 हो सकते. There are plenty of machines available, and those machines we can use on rent. तो ऐसे डेटा सेंटर है ना, बहुत लोगों ने ना बनाए हुए, बहुत सारी मार्केट में लीडिंग कंपनी है ना, उनने ऐसे डेटा सेंटर बना के रखे हैं जिसमें से 2-2 हजार 10-10 हजार पीसीज लैपटॉप्स अवेलेबल है, एंड वो क्या कर रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं, एंड रेंट पे देके पैसा कमा रहे हैं. तो बोलेंगे सर वो पागल है कि इतने लैपटॉप लेके कौन रेंट पे देगा? तो नहीं यार, पागल नहीं हो. उनको समझ में आ गया कि हार्डवेयर कितना हमें कॉस्ट जाएगा, एंड बाकी की चीजें इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल कितना कॉस्ट जाएगा, एंड वो सारे पकड़ के ना वो चार्जेस डिफाइन करके इतने पैसे देंगे. तो उससे क्या हो रहा है ना, तुम्हारा हेडेक कम हो रहा है, क्योंकि तुमको अगर ये 16 GB का रैम i7 प्रोसेसर लेना था ना, तो मार्केट में जाओगे, किसी ने तो बोला था कि सर परचेस कर लो नया वाला, तो मार्केट में जाओगे तो कम से कम 1 लाख का या उससे ऊपर ही जाएगा. तो एक प्रोजेक्ट के लिए फाइनल ईयर के लिए 1-2 रिजल्ट के लिए कौन कौन है कि जो 1 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं? इंस्टेड ऑफ दैट, उससे हाई कॉन्फ़िगरेशन का मैं मशीन लूंगा, एंड 100 रुपीज पर के हिसाब से भी मैंने लिया, तो भी मैंने 10 घंटे भी काम किया ना, तो भी मेरे कितने जाएंगे, 1000 रुपीज ही जाएंगे टोटल. और 1000 रुपीज में मेरा प्रोजेक्ट हो रहा है, मेरा रन हो रहा है, सारी चीजें. तो मैं 1000 रुपीज इन्वेस्ट करूंगा या 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा मेरे प्रोजेक्ट के लिए? क्या लगता है, क्या फिजिबल है? हेलो हेलो. Yes, sir. So 1,000 rupees, of course. यस 1000 ही करेंगे. ये 1000 ये फिजिबल है. करेक्ट गाइस, करेक्ट. 1000 रुपीज है ना, कोई भी इन्वेस्ट कर देगा 100 रुपीज पर आवर के हिसाब से 10 आवर के लिए, एंड यू विल गेट वॉट एवर द रिजल्ट यू हैव. एंड द सेम पॉलिसी इज एक्सेप्टेड बाय ऑल द लीडिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड. जो भी मार्केट लीडर्स है ना, वो लीडर्स हो या फॉलोअर्स हो, ऑल द IT इंडस्ट्रीज इज नाउ फॉलोइंग दिस ट्रेंड कि कौन खर्चा करेगा ना, कौन खुद के लैपटॉप लेगा, कौन खुद के मशीन, कौन खुद का इंटरनेट. एंड सी, इफ यू आर यूजिंग दिस मशीन ना, सो उसके साथ में 2000 लैपटॉप भी है, एंड इट इज नॉट लाइक दैट कि ये मशीन चालू है बाकी के बंद है, इसमें से कितने चालू है कितने बंद है. तो सबको है ना इंटरनेट लगेगा 24/7. नॉट ओनली इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी सबको, है ना, कूल डाउन करने के लिए AC लगेगा, बिकॉज मशीन अगर 24/7 काम कर रही है, सो उसका परफॉर्मेंस डिग्रेड भी हो सकता है. सो यू नीड सम कूलिंग मैकेनिज्म ओवर देयर, जो कि एक एम्बिएंट टेम्परेचर मेंटेन करे, जिससे उस मशीन को इतनी परेशानी ना हो. इट मे हैपन दैट आफ्टर 10 days of continuous working of that machine, इस 2000 में से ऐसे हो सकता है 200 लैपटॉप खराब हो जाए. सो 200 का मेंटेनेंस है, उनको रिप्लेस करना है, बाहर निकालना है इस डेटा सेंटर से, नए वाले 200 लेके आना है, उनको इंस्टॉल करना है. तो ये सारा हेडेक है ना, ये जो टॉप MNC कंपनीज है ना, वो बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे भाई, हमको नहीं चाहिए हेडेक, एंड फॉर सो इतना खर्चा करो, एंड देन 24/7 है, तो इंजीनियर्स लगेंगे उसकी देखभाल करने के लिए. सो 3 शिफ्ट में काम होगा. तो ये जो टॉप लीडिंग कंपनी है ना, वो बोल रहे कि हम नहीं करेंगे. तो हम क्या करेंगे, हम खुद का नहीं बनाएंगे ऐसी कुछ चीजें, हम क्या करेंगे, रेंट आउट करेंगे. जो कर रहा है ना, जो जिसका डेटा सेंटर है ना फुल फ्लेज, उससे हम क्या करेंगे, ऐसे मशीन है ना रेंट पे लेंगे, एंड फॉर आवर प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल फॉर 1 month, इट मे बी फॉर 10 months, फॉर 1 year और 10 years, अपन बॉन्ड ही करके लेंगे. सो फॉर 10 years I want your service. So these companies are giving you service. Okay, क्या कर रही हो, सर्विस दे रही, बिकॉज द फिजिकल लैपटॉप इज अवेलेबल इन पेरिस. तो ये थोड़ी पेरिस में जाएंगे इंडिया की कंपनी और उधर का लैपटॉप यूज करें, नो. बट थ्रू द वर्चुअलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, दे कैन एक्सेस दैट लैपटॉप at their place. So this is what the service that data center is providing to us, and we are using that service, and we are paying for that service as per the use. Pay as per your use. 1 hour के लिए यूज करो या 10
ईयर के लिए यूज करो, पे एज पर यूज। तो इस पॉलिसी से वो क्या करते हैं, चार्जेस लेते हैं। यानी कौन है पागल लोग कि जिन्होंने डेटा सेंटर बनाए हैं? बहुत सारे लोग हैं गाइस दुनिया में। Amazon उसमें एक लीडिंग कंपनी, गूगल उसमें एक लीडिंग कंपनी, एंड माइक्रोसॉफ्ट उसमें एक लीडिंग कंपनी मार्केट में, जो कि ऐसे चीजें देती है। विद दैट IBM भी है, अलीबाबा, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है। They will provide you such a rent out facility of machines on the cloud. तो इन लोगों ने क्या किया है पता है कि इन लोगों ने खुद के ना डेटा सेंटर बनाए हुए। तुम बोलेंगे है सर पॉसिबल नहीं, इतना मशीन कौन लेगा, डेटा सेंटर कैसे बनाएंगे? So if I share my screen, let me share my screen and I'll just ask Google, hey Google, I want to see the data center at Paris or at London. So they got data center Amazon Paris. If I click on this and if I click on images, so you can see plenty of images of Paris data center. So this is what the outer look of data center, or you can see if I open this image. So the data center is looks like this from the its room. It's one huge room. दिख रहा है कि सबको? Hello guys. Yes, sir. Yes, Room sir. with full security and full, देखो ये रूम रिमोटली, बाजू बाजू में कुछ नहीं। ऐसे डेटा सेंटर होंगे जिसमें पूरे के पूरे चीजें ना खुद वहां पे प्रोड्यूस करेंगे, लाइक इलेक्ट्रिसिटी हो या अर्थक्वेक हो तो उसे कैसे बचना है, क्या करना है ना, वो सारी चीजें ना वहां पे ना उन्होंने इम्प्लीमेंट करके रखी होंगी। देखो ये ऐसे दिखेगा, इट्स लाइक वेयर हाउस बट इट्स वन ह्यूज डेटा सेंटर एंड इन दैट नॉट ओनली 2000, इट में अपन 10,000 तक मशीन होंगे, फुल्ली इलेक्ट्रिसिटी सोलर प्लांट होंगे, देन कुछ उनके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले स्पेशल लाइंस होंगी सो दैट यहाँ पे पावर आउटेज नहीं होना चाहिए। देन इनको एसी चाहिए, पानी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। इंटरनेट, मेन मोस्ट इंटरनेट, विदाउट इंटरनेट इट इज यूजलेस। नेट इंटरनेट ही नहीं होगा तो कैसे नेटवर्क मिलेगा ना, तुम पुणे से कैसे पेरिस का डेटा सेंटर में से मशीन यूज कर, नॉट पॉसिबल। तो तुमको लगेगा होगा एक इंटरनेट, सो इंटरनेट में उनके पास है ना 1 Gbps 100 Gbps, और एक नहीं ऐसे 10 20 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होंगे, ये नहीं तो ये नहीं चला तो ये, इसका सर्विस डाउन। क्योंकि अगर इनका मशीन चल रहा है, तुम्हारा मशीन चल रहा है, बट जो ये इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है वही अगर डाउन है तो फिर गया ना, तुम भी कुछ नहीं कर सकते, ये भी कुछ नहीं कर सकते। तो इनके पास ऐसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर होंगे जो कि अल्टरनेट वे में ये नहीं तो ये नहीं तो ये चल रहे होंगे। एंड ये जो डेटा सेंटर है ये अगर रिमोट लोकेशन पे, तो इट में अपन की ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट फ्रॉम द इंडिया, नॉट फ्रॉम द पुणे, जितने भी कंट्रीज है सारे के सारे लोग ये एक्सेस कर पाते। तो कहाँ से रिक्वेस्ट आती होगी, कहाँ से इंटरनेट की कनेक्शंस यहाँ पे लोग ये मशीन लेने के लिए तैयार होते होंगे। तो इनको सबको सर्व करना है एंड सो दैट उनको उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना है। सो दिस इज व्हाट the thing that Amazon is doing, Google is doing, Microsoft is doing, and they are renting some machines. So I hope तुमको कुछ आंसर्स मिले होंगे, like what is computing, what is data center, what is virtualization. Now one thing is what is cloud computing. So let's talk about cloud computing. तो तुमने क्या किया पता है क्या, ये डेटा सेंटर में से ना ये लैपटॉप रेंट पे लिया जिसके अंदर है ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन था, और उसके अंदर तुमने क्या किया 100 टेराबाइट 100 TB का एक क्या किया हार्ड डिस्क भी ले लिया, रोम बोलता हूँ, तो ले लिया। और तुम्हारा प्रोजेक्ट चल रहा था अभी 10 आवर्स तक हमने बोला है। सो इट में अपन की तुमने क्या किया उनके साथ है ना कुछ एग्रीमेंट किया है, 1 ईयर के लिए तुमने लास्ट ईयर फाइनली वो प्रोजेक्ट के लिए वो मशीन रेंट आउट कर ली।
तो उससे क्या हुआ, 1 ईयर का तुमने एक एग्रीमेंट किया ना उससे ना, उन्होंने दिया कि 10,000 देते, चलो 10,000 में तुमको 1 ईयर के लिए रेंट आउट, क्योंकि तुमने पहले 10,000 दिया। तो वो बॉन्ड लिया, जैसे अपना होता है देखो 11 मंथ का बॉन्ड लेते अपन ओनरशिप से, अगर कुछ रेंट आउट कर रहे हैं फ्लैट वगैरह अपार्टमेंट, तो लेते अपन बॉन्ड करके 11 मंथ का। तो ऐसे कर लिया हमने, तो 10,000 रुपीज में पड़ा अपने को साल का वो मशीन। तो तुम भी खुश और वो भी खुश। अब देखो क्या हो रहा है ऐसे, तुम तो प्रोजेक्ट कर रहे, बट तुम तो इतने भी सिंसियर नहीं कि 24/7 प्रोजेक्ट करो। तो तुमने क्या करना चालू किया है ना, तुमको समझ में आया, देखो 1 साल के लिए तो ये मशीन मिल रहा है, उसमें ना 100 TB ऑफ हार्ड डिस्क है और वो बहुत फास्ट है। तो तुमने क्या किया, तुम्हारा जो लैपटॉप है ना उसमें जितने 500 GB का तुम्हारा जो हार्ड डिस्क था ना, उसमें जितने मूवीज है ना या नेटफ्लिक्स के वीडियोस है ना, वो तुमने क्या किया, उसका बैकअप है ना उस मशीन के ऊपर तुमने लिया। कि तुम शैतान हो, तुम लगा पैसे दे रहे, 100 TB मेमोरी क्यों वेस्ट है ना। तो आपने जो 500 GB के अपने हार्ड डिस्क में मूवीज पड़े हुए थे या कुछ वेब सीरीज थी, वो तुमने डाल दी यहाँ पे। तू खोज, क्योंकि तुम्हारा भी स्पेस यहाँ का बच गया, 500 GB फ्री हो गया तुम्हारा साल के लिए। तो ये तुमने किया। तो तुमने सोचा कि अरे और क्या करें, तो तुम्हारा एक दोस्त है और दोस्त के पास है नेटफ्लिक्स का है ना सब्सक्रिप्शन है, पेड सब्सक्रिप्शन। अब तुम मत पूछो यार मेरे को सर नेटफ्लिक्स क्या है और वेब सीरीज क्या होता है, पता है ना तुम सबको ही। हेलो हेलो, Yes, sir. हाँ नहीं तो फिर है ना, नहीं पता गूगल कर लेना यार, मेरे को मत पूछो। तो दोस्त है, दोस्त के पास है नेटफ्लिक्स है, और वो क्या करता है, हर एक वेब सीरीज को है ना डाउनलोड करके रखता है, उसका हैबिट है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया बाद में देखना पड़े तो क्या करें। तो हर फ्राइडे पे ना सीरीज रिलीज होती है ना, वो ना हर फ्राइडे को ना डाउनलोड करता है वेब सीरीज। तो वेब सीरीज डाउनलोड करता है, देन मूवीज नए नए जो आते हैं फुल HD में, वो क्या करता है डाउनलोड करता है और रखता है अपने पेन ड्राइव में, या उसके पास एक हार्ड डिस्क है उसके अंदर रखता हूँ 1 TB का उसका हार्ड डिस्क है, या लेट्स से 100 GB का उसका हार्ड डिस्क है, उसमें वो रखता है। तो तुम्हारा अच्छा फ्रेंड है, नियर बाय रहता है पुणे में, तो तुम क्या करते ना, उसको बोलते एवरी फ्राइडे या हर 2 दिन 3 दिन बाद है ना कि भाई तेरा 100 GB का हार्ड डिस्क ना मेरे को दे दे, मैं भी मूवीज वगैरह सीरीज देख लेता हूँ। तो वो क्या करता, देता तुमको, और तुम क्या करते हो, वो जो 100 GB उसका मिल रहा है ना वेब सीरीज एंड मूवीज, अब तुमको तो क्या है मिल रहा है फ्री में, मशीन फ्री में नहीं पैसे दिए। सो जो 100 GB है ना, तुम क्या कर रहे हो, इस मशीन के अंदर डाल रहे हो, तुम्हारे पास है इंटरनेट, तो लिए डाला। नेक्स्ट वीक में उसने क्या किया, फिर से 100 GB फुल रिफिल करके आया उसका हार्ड डिस्क नेक्स्ट वीक में, एंड वो बोला देख मेरे पास नया मूवीज नए वेब सीरीज मैंने डाउनलोड किए, प्राइम वीडियोस भी है कुछ। तो तुम बोलोगे चलो दे दो वो भी मेरे को, तो तुमने लिया एंड फिर से तुमने नेक्स्ट वीक में क्या किया, सेम कहानी की, सेम वो जो 100 GB है ना वो यहाँ पे डाल दिया। ऐसे चल रहा है 8 दिन तक। 8 दिन बाद तुम्हारा दोस्त बोलेगा तुमको कि देख भाई मैं तुमको दे रहा हूँ डेली का 100 GB का डेटा, तेरा लैपटॉप तो 500 GB है, तू क्या कर रहा भाई, कैसे डेटा मैनेज कर रहा है, कैसे डाउनलोड जो किया है कैसे डिलीट कर रहा है, मेरे को भी बता फॉर्मूला, क्योंकि मेरा भी हार्ड डिस्क कम पड़ रहा। तो तुम क्या बोलोगे, क्या आंसर करोगे उसको, क्या बोलोगे, क्या कर रहे हो तुम उस डेटा का। हेलो, व्हाट इज योर आंसर। हेलो गाइस, क्वेश्चन समझ में आ गया। हेलो हेलो गाइस, आकाश, दीक्षा, गौतमी, मितेश, Hello, sir. यस बोलो, शिगंदा, क्वेश्चन समझ में आया, Yes, sir. क्या वो आंसर करो। virtual machine पे हम लोग डाल रहे हैं like ओके, वर्चुअल मशीन पे to सेव keep कर our रहे हैं। storage intact. We are using others. I mean remote machine or data centers Yes, machine. remote machine. We are saving data on remote machine. या उत्कर्षा Yes. बोले saving at another place. So तुम्हारे लिए ये remote machine है, but
जो बंदा पेरिस में है उसके लिए रिमोट नहीं है, उधर ही जो होगा उसके लिए तो पेरिस में ही है ना, यस और नो, है ना? Yes, sir. यस. सो व्हाट, और डेटा ट्रांसफर, ओके, मितेश बोल रहा है डेटा ट्रांसफर कर रहा है, यस, ओके फाइन. सो व्हाट यू आंसर टू योर फ्रेंड ना, योर आंसर इज आई एम सेविंग दैट डेटा ऑन रिमोट मशीन. जो तुमने बोला रिमोट मशीन पे सेव कर रहा हूं, बट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. द मशीन इज at remote place, Paris में. The machine is in one room. That room is called data center. So I'm storing my data in one machine at one data center. So इस data center को अपन क्या बोलते पता है क्या? That data center is nothing but cloud for us. हम उसको बोलते हैं cloud, because that is physically is not with us, but logically that is with us, like your Google Drive or your Dropbox. So you can save plenty of data, like around 15 GB तक तो देता है वो. So what you can say, तुम्हारे दोस्त को बोलेंगे देख मैं क्लाउड के ऊपर है ना डेटा रख रहा हूँ. So this is what the cloud concept is, guys. So cloud means हमें लगता है क्लाउड में जाएगा डेटा क्लाउड में 7 क्लाउड के ऊपर, बट नहीं यार, क्लाउड वगैरह ये जो है ना ये एक मिथ है. मीन्स क्लाउड इज नथिंग बट one data center, and in that data center there are plenty of hardware with different configurations, different hard disks, and we'll keep on using that particular hard disk or particular machines for our use. We'll download, install, we'll do whatever thing that you want in this machine. तो अगर तुम ऐसे मशीन के ऊपर काम कर रहे हो जो फिजिकली तुम्हारे पास नहीं है, वर्चुअली तुम्हारे पास है, एंड दैट मशीन इन द डेटा सेंटर मींस क्लाउड के ऊपर वो मशीन है ना, एंड उस मशीन के ऊपर तुम काम कर रहे हो मींस कंप्यूटेशन कर रहे हो ना, उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, गाइस. दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. द कंप्यूटेशन डन ऑन virtual machine which is physically far away from us, but logically it is with us. So that machine is in data center, that machine is in cloud, and that cloud के machine के ऊपर हम competition कर रहे हैं. competition कर रहे हैं means ये जो आ रहे हैं ना 100 GB वो यहाँ पे save कर रहे हैं. that is nothing but competition. The competition means you have installed one software in this machine and तुम्हारा जो project चल रहा है उसके results तुम check कर रहे हो. so that is nothing but competition. So you are doing that computation on this machine, so that is nothing but cloud computing, guys. I hope this definition is clear to all of you. Hello guys, Yes, sir. Yes, sir. clear hai? हाँ sir. Yes. So this is what the cloud computing, and ये आज से 2 महीने तक 3 महीने तक हमें करना है, क्योंकि हम बैठेंगे अपने घर में and हम जाएंगे पेरिस, and पेरिस के डेटा सेंटर में से ना ये मशीन लेंगे एंड उस मशीन के ऊपर ना कंप्यूटेशन करेंगे. अब क्वेश्चन आता है कि सर लिनक्स एंड पाइथन एंड ऑल. तो देखो गाइस, मोस्ट ऑफ द डेटा सेंटर्स आर देयर ना, उनके अंदर है ना सिर्फ हार्डवेयर नहीं होता, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा. ऑपरेटिंग सिस्टम अपन जब से हमने जन्म लिया है हमको एक ही पता है कि विंडोज नाम की या एप्पल यूज कर रहे, तो मैक ओएस 2 ही ऑपरेटिंग सिस्टम पता होती है गाइस. So this Windows and Mac OS है ना वो हमारे दिमाग में ना बम्बार्ड कर करके ना ये पता होती है. But whatever the operating systems are there in this remote place पे जो मशीन है ना डेटा सेंटर में, 95% operating systems are of Linux. तो 90-95% Linux के मशीन है. तो ये जो भी कुछ लैपटॉप है ना 2000 लैपटॉप, उसमें से ना अराउंड 1900-1800 लैपटॉप्स आर वर्किंग ऑन लिनक्स मशीन. तो लिनक्स आना पड़ेगा, वो मशीन लेना है, वो मशीन के ऊपर काम करना है. तो ये मशीन तो लिनक्स बेस है, तुम्हारा मशीन विंडोज बेस है. तो विंडोज बोलेगा देख मैं इससे कनेक्ट तो करके दूंगा तुमको, बट कनेक्ट होने के बाद जो स्क्रीन पे देखेगा ना ये मेरे हाथ में नहीं, वो लिनक्स है, ये तुमको पढ़ना पड़ेगा. एंड देन लिनक्स के कमांड पढ़ने पड़ेंगे, एंड देन लिनक्स कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें होती है. सो दैट एवरीथिंग यू मस्ट लर्न, अदरवाइज ये मशीन फिर तुम्हारे लिए कचरा है, क्योंकि मशीन दिखेगा यहाँ पे
इट लुक्स लाइक लिनक्स मशीन। अब लिनक्स मशीन में क्या करते हैं, कैसे फाइल बनाते हैं, कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, फोल्डर्स कैसे बनाएंगे, क्योंकि तुम्हें ये 100 GB का फाइल जो डालना है लिनक्स मशीन के ऊपर, सो दैट इज नथिंग बट कॉपी पेस्ट। सो हाउ टू डू कॉपी पेस्ट इन लिनक्स मशीन एंड कैसे फोल्डर बनाए मूवी के नेम के एंड सो, ये भी क्वेश्चन मार्क है ना गाइस, आ समझ में? हेलो, बड़ा क्वेश्चन मार्क है नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस। तो अपना एक पूरा सेशन है ना, 1 या 2 सेशन अपने लिनक्स पे होंगे, जिससे मैं तुमको ना लिनक्स में मास्टर बना सकता हूँ, एक लेवल पे लेके जा सकता हूँ, जिससे तुम दुनिया के किसी भी लिनक्स मशीन के ऊपर है ना बहुत कॉन्फिडेंटली काम कर सको। सो दैट आई विल डू, डोंट वरी। सो कहाँ तक हम गए आज? तो आज जो मैंने प्रॉमिस किया था, कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर एंड व्हाई क्लाउड कंप्यूटिंग। शायद वाई का भी थोड़ा थोड़ा तुमको पता चल गया होगा कि अगर इतना बड़े बड़े कॉन्फ़िगरेशन के मुझे मशीन्स मिल रहे हैं 24/7 अवेलेबल, और मेरा हेडेक कम है बिकॉज कम पैसे में मुझे इतने मशीन मिल रहे हैं, तो क्यों ना ये टॉप लीडिंग कंपनी इंडिया की या आउट ऑफ इंडिया की, क्यों ना वो सोचे कि हम भी ऐसी मशीन रेंट आउट करेंगे, जिससे कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बचेगा, क्योंकि हम अपने प्रीमाइसेस पे ऐसे मशीन लेंगे, बट कोविड जैसा कुछ सिनारियो हो जाए तो लोग वैसे ही कमा रहे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो अपने मशीन को कौन देखभाल करेगा, कौन उसको इलेक्ट्रिसिटी, एसी एंड मेंटेनेंस देखेगा, तो कौन इतना हेडेक लेगा? इंडिया में इतने सारे इश्यूज है इलेक्ट्रिसिटी से लेके इंटरनेट के, तो कौन इतना हेडेक लेगा? सो उन्होंने भी सोचा कि चलो अपन अमेज़न, गूगल जो अपने चिप में देगा, सस्ते वाले मशीन देगा, अच्छे वाले मशीन देगा, तो हम उनकी सर्विस हायर करेंगे। तो अमेज़न है ना अपने को सबसे सस्ते वाले मशीन देता है, so that's why that AWS is so popular and that's why many of the companies are considering AWS services. So it's nothing but Amazon की कंपनी ने, Amazon ने डेटा सेंटर दिया है, तो Amazon हमें क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। जो मैंने बोला कि मशीन हम ले रहे हैं, रेंट आउट कर रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, but that service is with the help of internet. Without internet it's not possible, so that's why web लगा दिया उन्होंने, and that becomes Amazon Web Services, AWS. So we also use this service, Amazon की सर्विस। so ये जो Amazon है ना बड़ी कंपनी है, Amazon कंपनी is a huge company, and उन्होंने क्या किया, एक छोटी कंपनी बनाई AWS, so that will gives us few services with the help of internet, and वो छोटे कंपनी को उन्होंने नाम दिया AWS। क्लियर है गाइस? ऐसे Amazon का AWS है, ऐसे गूगल ने या माइक्रोसॉफ्ट ने भी क्या किया, अपने अपने डेटा सेंटर चालू किए, और उस सर्विस को नाम दिया Azure। माइक्रोसॉफ्ट ने सेम चीज जो AWS करता है वही Azure करता है। गूगल बोला हम भी मार्केट लीडर है, क्योंकि अगर हम नहीं देंगे तो लोग गूगल जैसे विश्वास उठ जाएगा, तो गूगल भी सबसे लेट है ना ये आया मार्केट, तो इन्होंने भी क्या किया, अपने खुद के ऐसे मशीन रेंट आउट करना चालू किया, और उसको बोलते हैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, GCP। सो इफ यू लर्न एनी वन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी ना, अगर तुम AWS में मास्टर बन गए ना, so it will hardly take 10 to 15 days to master Azure, or it will take 10 to 15 days to master Google Cloud Platform. So that's why many of the engineers are learning AWS, so that conceptually सब clear करेंगे, and then as per the company need, क्योंकि हमारी कंपनी कल उसका टाइप हो सकता है गूगल के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, IBM, अलीबाबा, तो तुम नहीं बोल सकते कि स्वयं मेरे को सिर्फ AWS आता है, तो तुम एक तो जॉब स्विच करोगे, या तुम नई टेक्नोलॉजी पढ़ोगे जो तुमको नया पैकेज देंगे, क्योंकि कंपनी बोलेंगे देख AWS तो उसको आता ही, अब वो Azure भी कर रहा है, तो ये रिसोर्स नहीं छोड़ना है, तो ज्यादा पैकेज देंगे, और उसी बंदे को या बंदी को अपन काम पे रखेंगे, so that you can migrate to any one of this technology. So I hope this AWS and Azure and GCP words are clear to all of you. Hello guys, ठीक है? Yes, sir. Yes. तो सिलेबस है ना बहुत सारे, अभी ये क्या कहते हैं, बहुत सारी यहाँ पे जो वर्ड लिखा है सर्विस, तो ये ना अराउंड 200 सर्विसेज देते, 200+ सर्विसेज देते, तो 200+ सर्विसेज पढ़ना और याद रखना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे, उसमें से 20 इंपॉर्टेंट है ना इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, 20 से ही ज्यादा,
उतने सर्विसेज अपन पढ़ेंगे जिससे तुम्हें ना 2-3 जो इसके सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं जो खुद AWS कंडक्ट करता है ना, वो 2-3 तो दे सकते हो। मीन्स क्लाउड आर्किटेक्ट होता है या डेवऑप होता है, ऐसे 2-3 जो सर्टिफिकेशन कोर्सेस है ना, तुम इजीली जा सकते हो। उतना सिलेबस अपन कवर करेंगे, बट इट्स अप टू यू कि तुम कैसे कोप अप करते हो, कैसे नोट्स निकालते हो, बनाते हो। मैं तो दूंगा ही, बट तुमको उसके साथ में मैं जो होमवर्क दूंगा ना वो भी करना पड़ेगा, बिकॉज थोड़ा नॉन IT बैकग्राउंड से होते हैं ना, तो अपने को ना ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में थोड़ा फंस जाते हैं। ये जो मशीन से कैसे होगी, क्या होगी, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, एक मशीन हो गया तो कैसे होगा, 10 होंगे तो कैसे होगा, ये इंटरनेट कैसे चलेगा, वर्चुअली मुझे कैसे दिखेगा ये मशीन, एंड सो ऑन। तो जो वो टेक्निकल चीजें ना मैं तुमको होमवर्क दूंगा, सो तुमको वो नोट्स निकाल के ना पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है गाइस? हेलो, Okay, sir. okay, fine. So this is what about the syllabus and Azure and this. मेरा इंट्रोडक्शन मैं कल दूंगा तुमको, एंड कल अपन है ना रिमेनिंग 3 चीजें पढ़ेंगे कि ये क्लाउड प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, डिप्लॉयमेंट मॉडल्स क्या होते हैं, सर्विस मॉडल क्या होते हैं।